حضرت یہ لائٹ نہ بند فرما دے، چلے ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا محبت سے پڑھ کے دکھا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کی کریں۔ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے جی، بس آپ تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، محبت کا، یقین کا میٹھا ڈال دینا ساتھ، تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے، دل ساتھ نہ دے تو ثواب تو ہو جاتا ہے، میں کوئی ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچیں کہیں ہیں۔ کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو ثواب ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بس میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محافل میں ویسے بھی مزاج ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں جائیں نا 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو، 2 بار کبھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود لطف آئے گا، آنکھیں بند ہوں، توجہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کی جانب، اور کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا۔ اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر ہے کچھ نہیں کہیں گے، تسی انہوں دا نام لینا، جو کسی نے کچھ کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اس کو بھی پتہ ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے، کاٹنے دے چکر، اس کو کچھ نہیں کہتے، بس آپ توجہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ بس آپ نہ ڈرا کریں۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے، روز تو نے 100 بار نا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ 100 بار، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تعداد تو نہیں، ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، او گئی جی 100 بار۔ تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا اس سے پہلے، اور جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا، اس نے بھی پڑھ رکھا تھا۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، تو میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پاڑی چھڑے ہے، میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیڑی استغفار ہے؟ وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یہ کو معافی مانگنے کا انداز ہے، نہ سر جھکایا ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے؟ کبھی حضرت جی جو کچھ ساتھ ہے نا، کبھی آپ اس کو ملا لینا تو پھر دیکھو وہاں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، توجہ، محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، آنکھیں کوشش کر کے بند کر لیا کریں،
وہ پھر پڑھا کریں، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے نا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انشاءاللہ جب بھی پڑھنا ہے نا پھر دیکھیں ہوتا ہے. پھر جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین. پھر اس کے بعد آئے گا یقین بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی راج کے بے یقین. اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا، سب کچھ ہے. اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، ساری زندگی مخالفت نفس رہی ہے، نفس سے لڑائی رہی ہے. تو ہماری تو یاری ہے نا، ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے اس کو. لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی ہے، جو نفس نے کہا مخالفت. جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. لیکن اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑائی، اب تو بس یہ کتابوں میں رہ گئی باتیں. اب تو یرانا ہے حضرت جی نفس، اب تو پال رہے ہیں. یہ تو اللہ کی قسم کو دکھانے والا ملے نا تو ہمیں دکھائے کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوا ہے. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا. تو آگے سے آواز آئی توکل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنا نفس؟ تو عرض کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے، تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں. تو لکھا ہے پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کا نفس، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے. حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا ہوئے دشمن تو بہت تگڑا ہے حضرت. اب کدھر ہے بات، اب تو بس عجیب و غریب ہی حالات. وہ گئے حضرت جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے حضرت جی، اب نہیں جی، اب تو پال رہے ہیں ہم اس کو. جناب سیدنا سریسہ قطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں. اور آپ فرماتے 40 سال ہو گئے ہم اپنی خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں. اب اور حضرت یہ تو پیر تھے نا، اب مرید کی بھی سن لو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی وہ آپ روزے سے تھے، آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دیے اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ، آج میں روزانہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ لے آیا. وہ جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے منہ میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد نا تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا. وہ مرید نے عرض کی حضرت کیا ہوا، انجیر تھوک کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں پوری کر رہا تھا، آج پھر اس نے تقاضا کیا. تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چل آج کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، تو آج روزہ افطار کر لیتے ہیں انجیر سے. تو فرماتے جیسے میں نے منہ میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی، جنید پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. فرمایا اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں دے. اب کدھر، اب تو کتابوں میں ہے، اب تو ہمارا نفس ہم پہ سوار ہے، ہم اس کے گھوڑے ہیں، وہ ہم پہ سواری کریں.
वो जिधर उसका वो चाहता है हजरत हमें भगाता फिरता है। और कभी वो थे जो अपने नफ्स पे सवारी किया करते थे। अब हजरत ये स्पेशल उलमा की बारगाह में सबक सुनाऊंगा, ये मेरे हाथ से फवाइदुल फवाद शरीफ है। उसमें लिखा है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला के मोहल्ले में ना एक हिंदू इस्तदराजी था, हजरत शोभदाबाज था। और उसमें कमाल ये था कि वो मरज सलब कर लिया करता। किसी बीमार ने आना ना, इसने मरज सलब कर लेना। दूर दूर तक फवाइदुल फवाद में लिखा है उसका शोरा था, लोग आया करते थे हजरत उसके पास। और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ना बीमार हो गए और हजरत की हालत बिगड़ी। तो कहते हैं ना, आलिम के पास जाओ जुबान काबू में रखो, बादशाह के पास जाओ सर काबू में रखो, लेकिन जब किसी फकीर के पास जाओ तो फिर दिल काबू में रखो, क्योंकि ये दिलों के ख्यालों को पकड़ लेते हैं। अब जाहिर है हजरत की हालत खराब थी, बेहोशी तारी हो रही थी। आप उस पास बैठे मुरीद सोच रहे होंगे कि भाई उस हिंदू को बुला के लाते हैं, वो हजरत का मरज सलब कर लेगा। हजरत ने वसवसा पकड़ लिया। आपने फरमाया अगर बीमारी की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश हो गया ना, तो उस काफिर को ना बुला के लाना। वो हजरत बेहोश हो गए, मुरीदीन से नहीं रह गया। वो उस काफिर को बुला के ले आए। उसने हजरत का मरज सलब कर लिया। हजरत को होश आ गई। होश आई तो क्या देखा, वो हिंदू इस्तदराजी पास बैठा हुआ है। आपने फरमाया ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसको ना बुला के लाना, लेकिन तो फिर बुला के ले आए। लेकिन चलो, अब कुरान का कायदा है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है। एक नेकी इसने की है, अब एक नेकी मैं भी करूंगा। आपने तवज्जो फरमाई रूहानी उस काफिर के दिल पे, और साथ उससे सवाल किया, ओ काफिर तू तो काफिर है, तुझ में ये कमाल कैसे आ गया कि तू लोगों की बीमारियां सलब कर लेता है? तो आगे सर्च करता है हजरत अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। मेरे नफ्स ने कहा ना सो जा, मैं नहीं सोया। उसने कहा नहीं सोना, मैं सो गया। उसने कहा खा, मैंने नहीं खाया। उसने कहा नहीं खाना, मैंने खाया। उसने कहा थोड़ा खा, मैंने पेट भर के खाया। उसने कहा पेट भर के खा, मैंने थोड़ा खाया। मैंने हर बात में ना अपने नफ्स की मुखालफत की, जिसकी वजह से मुझ में ये कमाल आ गया। अब हजरत की तवज्जो थी। आपने फरमाया ये तो बता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? तो वो काफिर कहता है हजरत नहीं मानता। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना है। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना। तो कहता है जी मैंने अब हर बात पे अपने नफ्स की मुखालफत की है, जिसकी वजह से ये मुझ में कमाल आ गए। तो अब इधर भी तो मुखालफत करना, क्योंकि हजरत की तवज्जो थी, गर्म हो चुका था ऊपर से। और करता है हजरत पढ़ाओ फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब शेख लिखते हैं कि अगर कोई काफिर भी मुखालफत नफ्स के रास्ते पे चले तो उसमें भी ये कमाल आ जाता है। तो अगर कोई मोहम्मदी चलेगा तो फिर उसमें क्या कमाल आएगा? इसी तरह लिए फिर इकबाल ने इशारा किया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हमने हज़रत जी क्या मुखालफत नफ्स करनी है? हमारी तो नमाजें ही नहीं पूरी है। हमने मुखालफत नफ्स क्या करनी है, या हमने क्या नफ्स से लड़ाई करनी है? हमारी नमाजें ही नहीं पूरी। हम तो अभी फराइज के मामले में बड़े कमजोर हैं, अभी तो वाजिबात बड़े रहते हैं, हमने क्या करना। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, स्पेशल हज़रत जिहड़े सी है चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे हैं, साढ़े कोल हुण टाइम कोई नहीं है। असी उठिए जा जा वड़दे मंदर मसी, कदी मन अपने विच वड़े वड़िए। बड़ा बार फोल लिया, मीरपुर फोल छड़िया, शद्दादपुर फोल छड़िया है, सांगड़ फोल छड़िया, जामशोर फोल छड़िया, अंदर नहीं फोलिया कदी। अपना अंदर फोलिए। बहुत फिर लिया बाहर, गोली मारो बाहर, किते बह के ना अपने अंदर वड़िए। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े। देखते ही कोई नहीं। मेरे ये बुजुर्ग ना हकीम खादिम मीरा हजरत बड़े नरम दिल थे।
حضرت کا ایک مرید تھا گجر، اس کو بیماری لگ گئی جڑی سانو تقریباً لگی ہے کیا، دوسروں کے عیب دیکھنے کی۔ بھائی جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھے، اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی۔ دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے، وہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے، یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا۔ جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے، جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا۔ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں، اب فرماتے برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اگر دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نہیں دیکھ رہا، اور جو اپنے دیکھے گا وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا۔ تو وہ مرید کو بیماری لگ گئی دوسروں کے دیکھنے کی۔ اب حضرت نے تربیت کرنی تھے بڑے نرم دل، کس طرح تربیت کروں؟ وہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، بڑی عید آ گئی حضرت، وہ بندہ بھیجا حضرت، اس گجر کو بلایا، وہ آ گیا، اس کو کہنے لگے بھائی گجرا، ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنا ہے، تو تم ذرا بہتر سمجھتے ہو مجھ سے جانوروں کو، تو میں نے قربانی کے لیے نا کوئی جانور لینا ہے، تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ، مجھے منڈی سے کوئی جانور ہی لے دے۔ وہ گجر بڑا خوش ہوا، وہ اپنے پیر و مرشد کو جانور لے کے دینا، وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا۔ اب منڈی گئے، وہاں آپ نے نا ایک بکرا پسند فرمایا، فرمایا بھائی گجر، جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو، ذرا چیک کر کے دیکھو بکرا ٹھیک ہے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ آگے گیا، پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے، دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں، پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے نا دان دیکھے، اور کرتا ہے حضرت کوئی بکرا ٹھیک نہیں تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پسند کیا، ریجیکٹ، تیسرا پسند کیا، ریجیکٹ، چوتھا پسند کیا، ریجیکٹ۔ جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بول پڑے، آپ نے فرمایا بھائی گجر، بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا، سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ اور کرتا ہے حضرت یہ بکرا آپ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں، ہاں میری تو تم نے کھریاں بھی دبا کے چیک کی، میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھی، میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھے، میرے تو منہ کھول کے دانت بھی دیکھے، اسے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے؟ جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من اپنے وچ بڑے بڑو پتر اسپیشل اتنے باب میں بڑو بہت بات کک اندر جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من اپنے آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے۔ یہ مولانا روم جی کمال حضرت جی، دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جی امت میں، پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی رحمۃ، حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسنوی شریف۔ لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے ہمارا تعلق ویسے اب تو حضرت وہ ناولوں کا دور ہے، اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دور ہے، اب تو گوگل کا دور ہے، کتابیں پڑھا کرو۔ لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے جے مولویاں نہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوا ہے، اپنی اصلاح واسطے پڑھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھی نواں پھڈا نہ حضرت جڑا کوئی 4 ورقے پڑھ لے انہیں آ کے مولویاں لڑائی پائی ہوئی ہے، یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی۔ یہ بھی ایک پھڈا ہے نا، اس کو 4 باتیں آ جائے انہیں سارے تو پہلے آ کے مسجد مولوی صاحب نہ پھڈا پانا، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے، تنقید کے لیے نہیں پڑھنی کبھی۔ کمال حضرت جی مسلم حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی۔ بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا، اور آپ کو پتا میرپور میں کوئی چیز ہو بھی ایک کی بس، تو ظاہر ہے جدھر 4 بندے بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا،
और वो हीरा था भी एक ही। जहां को 4 बंदों ने बैठना ना, बातें हीरे की होती। आहा क्या हीरा की। बड़े बड़े चोरों ने उसको चुराने की कोशिश की लेकिन नाकाम आए। वो एक दिन को महफिल लगी थी, कुछ नौजवान बैठे थे, हीरे की बात चल निकली। उनमें को मेरे जैसा शोखा भी बैठा हुआ था। वो जो को मेरे जैसा था ना, उसने कहा लो ये कौन सी बात है, मेरे हाथ में तो सफाई पड़ी है, आज ही बाबा जी से हीरा चोरी करके लेके आऊं। जो दोस्त थे ना, उनको पता था इसे हीरा चोरी नहीं होना, बाबा जी बड़े दाना आदमी है। उन्होंने कहा गल सुन, अगर तूने हीरा चोरी कर लिया, हीरा भी तेरा और हम अपनी तरफ से भी ना तुझे ये इनाम देंगे। अब जनाब वो आया बाबा जी के घर, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाबा जी ने दरवाजा इस तरह खोला कि बाबा जी ने ना अपने पीछे गठड़ी उठा रखी थी। अस्सलाम वालेकुम कहा, बाबा जी ने वालेकुम सलाम। वो गठड़ी देख के कहता बाबा जी किधर जा रहे हैं? मैं मिसाल के तौर पे इधर का नाम ले लेता हूं। वो बाबा जी कहने लगे भाई पुत्रा मैं तो सखर जा रहा हूं। उन्होंने कहा बाबा जी मैंने भी सखर ही जाना। मुझे पता लगा कि आप सखर जा रहे हैं, तो मैंने कहा इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, चल आ निकलते हैं। वो दोनों निकल पड़े। अब सखर के रास्ते में कहीं वो मोरों वगैरह में वो रात पड़ गई, पैदल सफर था। अब फैसला हुआ भाई इधर ही हम रात ठहरेंगे। एक दरख्त के नीचे बाबा जी ने गठड़ी रखी, अपनी कमीज उतारी, दरख्त से लटकाई, अपनी वेस्टकोट उतारी, दरख्त से लटकाई, और बाबा जी किबला रुख होके ना वो लेट गए। अब जब उसने समझा ना कि बाबा जी सो गए हैं, अल्लाह मेरी बात याद रखना, बाबे नहीं सोते कभी, और जो सो जाए हम उसको बाबा मानते भी नहीं है, बाबे नहीं होते हैं, और जो सो जाए हम उसे बाबा मानते भी नहीं है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सज्जन दी पई सुते आन जगावे है। जो सो जाए हम उसको बाबा मानते भी नहीं है। कोई बाबे कहां सोते हैं? वो भी नहीं सोए, बस सोने की वो एक्टिंग कर रहे थे। उसने समझा सो गई। उसने क्या किया, पहले बाबा जी की ना गठड़ी की तलाशी हीरे के लिए, नहीं मिली। फिर उसने बाबा जी की वेस्ट कोट चेक की, सामने वाली जेब नहीं मिली, नीचे वाली 2 जेबें नहीं मिली, अंदर वाली दोनों जेबें नहीं मिली। फिर उसने बाबा जी की कमीज की तलाशी ली, फिर नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा देखा था दोपहर को हीरा बाबा जी की जेब में था, अब हीरा किधर गया? फिर गठड़ी, फिर वेस्ट कोट, फिर कमीज, फिर गठड़ी, फिर वेस्ट कोट, फिर कमीज, फिर गठड़ी, फिर वेस्ट कोट, फिर कमीज। सारी रात ये चक्कर चलता रहा। बाबा जी मजे से अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब वक्त आया ना तहज्जुद का, तो बाबा जी ने मसनूई खांसी की, जल्दी से सो गया। बाबा जी उठे, तहज्जुद अदा की, फजर के लिए उसको भी उठाया, तो उन्होंने जमात के साथ फजर पढ़ी, मोरों से सखर। अब रात तक वो सखर पहुंच गए। बाबा जी ने कहा भाई मैं तो यहां ठहरूंगा, अब तूने जो अपना काम करना ना करके तू भी वापस इधर आ जाना, कल फिर निकल पड़ेगी। वो बेचारा सारी रात वो सखर में धक्के धुके खाता रहा। अगले दिन सुबह फिर आ गया। बाबा जी ने उसको साथ लिया तो मीरपुर खास वापसी। रास्ते में फिर मोरों के आगे पीछे कहीं रात आ गई। फिर फैसला हुआ। उसने कहा यार 2 रातें गुजर गई, हीरा नहीं मिला, आज आखिरी रात है, आज भी हीरा ना मिला तो दोस्तों से बड़ी बेइज्जती होनी है। उसने चेक किया दोपहर को हीरा बाबा जी की जेब में। उसने कहा आज रात नहीं हीरा बचना। वो रात आई, बाबा जी ने उसी तरह गठड़ी रखी, कमीज उतारी, वेस्ट कोट उतारी, बाबा जी फिर लेट गए। फिर वो शुरू हो गया, गठड़ी वेस्ट कोट कमीज, गठड़ी वेस्ट कोट कमीज, गठड़ी वेस्ट कोट। सारी रात वही चक्कर चलता रहा। तहज्जुद के वक्त बाबा जी ने फिर खांसी की, वो लेट गया। फजर पड़ी, मीरपुर वापस आ गए। बेइज्जती हुई, शर्मिंदगी हुई। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं एक काम उसने किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। क्या? वो बाबा जी के घर गया, जाके दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने दरवाजा खोला। बाबा जी के कदमों में, बाबा जी माफी दे दो। क्या क्या हुआ? वो हजरत वो जो सखर गए थे ना, वो तो इस प्रोग्राम के लिए गया था। उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैंने पहले ही माफ कर दिया। अच्छा। फिर वो घुटने छुटने दबा के ना खुशामद करके कहता बाबा जी अब एक राज भी तो बताएं। पूछा हो की? कहता बाबा जी ये बताएं, दोपहर को मैं देखता था हीरा आपकी जेब में होता था, रात को हीरा किधर छोड़ते थे?
2 रातें मेरे तलाश कर कर के राह कुछ नहीं है, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, गठड़ी वेस्टकोट कमीज, सारी रात लगा रहा। बस इतना बता दें, खुद ही फरमाने लगे तू खुद ही कह रहा है कि राज है, तो फिर राज तो नहीं ना पूछे जाते हैं। कहता नहीं हजरत बता दे रात को हीरा किधर छोड़ते। आपने फरमाया नालायक आदमी, तू 2 रातें हीरा मेरे सामान में तलाश करता रहा और मैं तो हीरा तेरे सामान में छुपा देता था। तू 2 रातें हीरा मेरे सामान में तलाश करता रहा, मैं तो हीरा तेरे सामान में तलाश कर देता। अगर तू अपने सामान में हीरा तलाश करता तो तुझे हीरा मिल जाना था, लेकिन गलती तुझसे क्या हुई, तूने अपने सामान में कोई नहीं तलाश किया है, तू मेरे सामान में तलाश करता रहा। हीरा हजरत जी सबके अपने अपने सामान, हीरा सबके जा जा वड़ दे मंदिर मसीह कभी मन अपने विच वड़े ही नहीं। हीरा तो सबके अंदर ही है, लेकिन दुख क्या है हजरत, अपने अंदर तलाश कोई नहीं कर रहा। आप मुझ में तलाश कर रहे हैं, मैं आप में तलाश कर रहा हूं। जिस दिन आपने खुद में तलाश करना शुरू कर दिया, मैंने खुद में तलाश करना शुरू कर दिया, फिर उस दिन हीरा मिल जाएगा। और इसी तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इशारा किया, फरमाते अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इसलिए हजरत दीन समझे, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ शैतान ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, कभी नफ्स अपने न लड़े, कभी कभी लड़ा करो यार इससे, कभी कभी लड़ा करो इससे, और लड़ के देखना बड़ा मजा आता है इससे लड़ने का। और बाबा फरीद का शुमार उन सूफिया में है कि जिनकी सारी जिंदगी नफ्स से लड़ाई रही है, बड़ी सख्ती की अपने नफ्स पे हजरत, बहुत सख्ती, तोड़ दिया उसके जोर को, सख्ती की अपने नफ्स पे। तो बाबा साहब फरमाते हैं प्यास लग गई, नफ्स ने पानी का तकाजा किया, फरमाते मैंने अपने नफ्स को कहा है नहीं पानी, और मैं फिर नफल शुरू कर दिया। बाबा साहब फरमाते हैं वो 2 रकअतें खत्म करते करते ना मुझ पे बड़ा ज़ौफ गालिब आ गया, कमजोरी आ गई। बाबा साहब फरमाते हैं मैं समझ गया फरीद पानी तो पीना ही पड़ना है। तो ये वाला दौर तो नहीं ना कि सामने बोतलें पड़ी हुई है, पानी कहीं जाके कोसों मील दूर मिलता था। बाबा साहब फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, बड़ा सफर किया, एक कस्बा दिखाई दिया, मकानात थे चंद। मैंने कहा लो जी अगर मकान है तो पक्की बात है पानी भी होगा। अब फरमाते मैं कस्बे में दाखिल हुआ, जब अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि कुआं है, कुआं है लेकिन कुएं के ऊपर ना कोई चरखी नहीं लगी, कोई रस्सी नहीं, कोई डोल नहीं वो पानी निकालने के लिए। तो बाबा साहब फरमाते मैं समझा कि शायद कुआं खुश्क है, लेकिन आप फरमाते जब मैं कुएं के पास गया ना और जाके देखा तो क्या देखता हूं कि कुएं में पानी है लेकिन पानी बहुत नीचे है और पानी निकालने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। बाबा साहब फरमाते हैं मैं कुएं के पास बैठ के जिक्र इलाही में मशगूल। मैंने कहा भाई जो कुएं तक लेके आया है आगे भी कोई बंदोबस्त करेगा। बाबा साहब फरमाते मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था तो क्या देखता हूं यकायक जंगली हरणों का एक जोड़ा आ गया। बाबा साहब फरमाते हैं जिस तरह जैसे मैंने आके कुएं में देखा था ना, मेरे देखने से तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब फरमाते हैं वो हरण आए और उन्होंने भी आके कुएं में देखा, लेकिन बाबा साहब फरमाते जब हरणों ने देखा तो पानी ऊपर आ गया। बाबा साहब फरमाते मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा फरीद बड़ी अजीब बात है, तू आया तो तेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया, हरण आए हैं तो उनके लिए पानी ऊपर आ गया। अब शैतान भी तो साथ ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। खुला दुश्मन हजरत, कोई मौका नहीं जाने देगा हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से दूर करने का, हमें भटकाने का कोई मौका नहीं जाने देता। बाबा साहब पे भी उसने वार किया, वसवसे डाले, कहता फरीद ये है तू ही है जिसके लिए 4 कसमें उठाई गई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। तू है, देख तू आया तेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया, हरण आए हरणों के लिए पानी ऊपर आ गया है।
तू मुरीद है कुतुब साहब का, वो मुरीद है ख्वाजा गरीब नवाज के, वो मुरीद है हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, ये है तू। लेकिन क्योंकि अल्लाह का करम था, शैतान का जोर नहीं चला, आप फरमाते मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के उसको दफा किया और मैं फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। आप फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए, अब पानी ऊपर ही है, हरन चले गए। तो आप फरमाते दिल में ख्याल है चल फरीद तेरे लिए नहीं आया है तो उत्ते ही ना, चल तू भी पी ले चल के। लेकिन बाबा साहब फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए कुएं पे पहुंचा ना पानी फिर नीचे, बाबा फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या हुआ। पहली बात पानी मेरे लिए ऊपर नहीं आया, हरनों के लिए पानी ऊपर आ गया, अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया पानी फिर नीचे चला गया, ये हो क्या रहा है। अब आम तो नहीं थे ना, खासुल खास थे। तो बाबा साहब फरमाते मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, मैंने अर्ज की रब्बे करीम ये क्या है, मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया पानी फिर नीचे चला गया, ये हो क्या रहा है। तो बाबा साहब फरमाते फिर आगे से आवाज क्या आती है, फरीद और तू भी ते रस्सी दे डोल दे आसरे ते आया सन, मेरे आसरे ते आए सन है। तू आया था जाऊंगा, रस्सी होगी डोल होगा, खींचूंगा पानी निकालूंगा पीऊंगा, वो ना आसरा रस्सी पे ना डोल पे ना चरखी पे, वो मेरी जात पे तवक्कुल करके आए थे। फरीद जिस दिन तू भी मेरी जात पे तवक्कुल करके आएगा मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। अब है सारा कुछ ही है, लेकिन बात तो यकीन की है, यकीन की। इसलिए तो इकबाल कहते हैं तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अब सह शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। फिर इकबाल कहते गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हौलों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आज हजरत जी हमारे पास एटम बम है, यकीन कोई नहीं है। एटम बम है लेकिन यकीन तो क्या है, एटम बम होने के बावजूद भी जलील हो रहे हैं, यकीन नहीं है। वो बदर वाले 313 थे, चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे, थोड़े से घोड़े थे, लेकिन क्या था, यकीन बड़ा कवि था हजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और उनके यकीन ने उनको 1000 पे फतह दिलवा दी है। यकीन नहीं है, इसलिए हजरत जी यकीन, क्योंकि जो करेगा यकीन, आपको कितना यकीन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल, यकीन करेगा। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला कमाल कर दिया। लेकिन हजरत जी अब पता है दुख क्या है, पहली बात तो पढ़ता कोई नहीं, दूसरी बात अगर को पढ़ेगा भी तो मजा लेने के लिए, चस्का लेने के लिए। मियां साहब का तो एक एक शेर बड़ा गहरा है हजरत, हम मियां साहब के एक शेर में गोता लगाएं हजरत आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, मारिफ खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे राज हैं मियां साहब के एक एक शेर में हजरत। लेकिन आए कौन, किसको राज बताएं, चस्के के लिए पढ़ रहे हैं, मजे के लिए पढ़ रहे हैं। ये मियां साहब ने ना हजरत तकरीबन 12 अशआर में इस बात को बयान, 11 नहीं पढ़ूंगा क्योंकि तो बहुत ज्यादा वक्त दरकार है, 11 का मफहूम पढ़ दूंगा, आखिरी शेर पढ़ दूंगा। कमाल लिखा भी एक शेर बड़ा सोना मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के, और एक शेर मियां साहब की फिक्र का नतीजा है, क्योंकि दावत है ना जी कुरान में, सबको अल्लाह ने दावत दी है। वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। दावत है जी। फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिहि अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा व इनबम व कदबा व ज़ैतूनम व नखला व हदाइक़ गुलबा व फाकिहतम व अब्बा। अच्छा नहीं है ना भी टाइम, फिर आखिरी दावत बंदे को क्या दी गई, अल्लाह क्या कहते हैं, नहीं बंदे तेरे पास टाइम, फिर क्या कर, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, और बंदे कम से कम कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही को देख ले। तूने नहीं मेरा आसमान देखना, तूने नहीं पहाड़ देखने, तूने नहीं जमीन देखनी, तूने नहीं फल देखने, तूने नहीं सब्जियां देखनी, और शीशे के सामने तो खड़ा होता है ना, खुद ही को देख ले। अपनी आंखें देख, अपने दांत देख, अपनी जुबान देख, अपने बाल देख,
अपना दिल देख, अपने गुर्दे देख, अपने फेफड़े देख, देख तो सही। और जितना तू देखेगा उतना तुझे मेरा कुर्ब मिलेगा। अब हम तो नहीं ना देखते हैं। अब देखो जी, मियां साहब ने देख के ना शेर क्या लिखा, मियां साहब की सुनना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मियां साहब, हाय हाय, फरमाते हैं कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। ये जो ये हजरत इंसान बैठे हैं, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बने जी, कोई इंजीनियर नहीं, कोई पहले स्केच नहीं था, कोई डाई नहीं थी। ये नहीं कि दिल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, आंखें कनाडा से मंगवाई, जुबान ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई, जो फेफड़े हैं वो जापान से मंगवाए, हम में भी अल्लाह ने हड्डियां डाली हैं, ये जर्मनी से मंगवाई, जो गुर्दे हैं हजरत जी वो न्यूयॉर्क से मंगवाए, नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, मां के पेट में बना, आंखें मां के पेट में बनी, दिल मां के पेट में बना, गुर्दे मां के पेट में बने, फेफड़े मां के पेट में बने, सारा कुछ ही मां के पेट में बना है। अल्लाह हजरत जी जुबान पे मैं बोल सकता हूं, बड़ा बोल सकता हूं जुबान पे, इतनी तहकीक हो चुकी है जुबान पे हजरत, आंखों पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है आंखों पे, दिल पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है दिल पे हजरत जी, लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं गुफ्तगू को समेट लूंगा, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ जाते जाते इशारा दे जाऊंगा, सिर्फ अंगूठे पे बोलूंगा। ये कभी हजरत जी अपने अंगूठे को ना मेरी नजदीक की नजर देखे ना, मैंने क्या वो लाइट बंद करवा दी है, वो अक्सर लाइटें पढ़ पढ़ के ना मेरी नजदीक की नजर कमजोर हो गई, अब मुझे इतना नजर नहीं आता नजदीक का। ये मेरे और आपके अंगूठे पे ना उसने कलमे कुदरत से इस तरह की लाइनें लगाई हैं, गोल लाइनें लगी हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं लगाई इस स्टाइल से हैं, लगाई इस अंदाज से हैं कि मेरा अंगूठा रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। और किसी को तो छोड़ो, किसी को तो छोड़ो, मेरा अपना ही दाया अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। दावत दावत है आप सबको, आओ देखो मेरी कुदरत, बार बार कुरान में दावत। अब मिसाल के तौर पे ये जिस मस्जिद में हजरत हम बैठे हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी ये एक कनाल है, ठीक है जी, अल्लाह का घर है, बढ़ाना ही चाहिए जी, बड़े का घर है, बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं जी एक कनाल है ये, ठीक है जी, 4 दीवारें और ये पिलर जिन्होंने आपके एक कनाल के छत को उठा रखा है। दुनिया में हजरत जी ना कोई इंजीनियर को साइंसदान पैदा हुआ और ना ही पैदा हो सकेगा जो बगैर किसी सहारे के इस एक कनाल के छत को खड़ा करे। सिर्फ एक कनाल का छत, कोई नहीं, दावा है कयामत तक, ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा, सिर्फ एक कनाल का छत। अल्लाह कुरान में दावत दे रहे हैं बंदे को, अल्लाह कहते हैं बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों और 2 पिलरों के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। और कभी ऊपर देख हमने 7 खड़े कर रखे हैं, कुरान है जी। अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, सबअ बंदे तेरा एक खड़ा नहीं होता है, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। जा सारी जमीन का चक्कर काट के आ, एक पिलर नहीं मिलेगा तुझे। मेरे सियालकोट में कोई पिलर नहीं है, लाहौर गया उत्थे भी नहीं, फैसलाबाद गया उत्थे भी नहीं, मुल्तान गया नहीं मिला, कोयटा गया नहीं मिला, केपी के सारा छान मारा हजरत जी, आपका सिंध फिर लिया हमने सारा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। सऊदीया गया नहीं मिला, दुबई नहीं मिला, यूके गया नहीं मिला, एक बार बेल्जियम गया नहीं मिला। ये निशानी है मेरे दोस्त, कौन देखे इसके पास, देखो उसके रंग देखो, दावत दे रहा है कुरान। बंदे देख, जैसे जैसे देखेगा वैसे वैसे कुर्ब बढ़ेगा। तो मियां साहब ने 12 हजरत जी इशार लिखे, 11 नहीं पढ़ूंगा।
11 का मफहूम 12वां पढ़। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़ी शरीफ जहां बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे, साथ एक दरख्त था जिसमें ना फाख्ता ने अंडे दे रखे थे, वो अपने अंडों पे बैठी, वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। नीचे बैठे मियां साहब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दोनों जिक्र वाले थे। हुआ क्या, एक शिकारी उस समतान निकला, उसकी नजर फाख्ता पे पड़ी। उसने जब फाख्ता को देखा उसने कहा लो जी दोपहर का खाना तो बन गया। वो उसने पीछे से अपने तुरकर से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, फाख्ता का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, क्योंकि अभी उसकी आई नहीं थी, उसके अंदर जो कुदरती सिस्टम लगा था वो ऑन हो गया। खतरा खतरा खतरा, उसने आंख खोली, तीर छूटने वाला था। उसने परवाज ली और उड़ के दरख्त से बाहर। जब थोड़ा सा उड़ के बाहर गई ना तो देखती क्या है, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है और नजर उसने भी फाख्ता पे लगा रखी है कि जब ये दाना लेने के लिए आए ना तो मैं झपटूं इसमें। और वो झपटा भी, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी इसलिए दरख्त में वापस आ गई। ये शेरों का तर्जुमा है। और वापस आके किया क्या, जब हम कोई नहीं करते हैं और अगर करें भी तो यकीन ही कोई नहीं है यार। वो क्या अर्ज करती है रब्बे करीम की बारगाह में, रब्बे करीम तुझे देखा नहीं, तेरे वलियों से सुना है, तू जो चाहे कर सकता है। अब आगे से जवाब, फाख्ता उगिए की चाहनी है साढ़े को। फिर फाख्ता रब्बे करीम दो मौतों में फंस गई, अगर नहीं उड़ती तो शिकारी के हाथों मारी जाऊंगी, अगर उड़ती हूं तो बाज के हाथों मारी जाऊंगी। दुआ ये है, अर्जी ये है कि इन दो मौतों से बचा सकता है। फिर जवाब आता है और कुकिए दो मौतां की ने, सारा जमाना भी मारने आ जाए, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं। तू देख हमारे रंग खड़े हो, वो खड़ी हो गई है। इस शेरों का तर्जुमा। वो शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ले भाई अच्छी खासी उड़ गई थी फिर आ गई। उसने समझा लगता है इसको इसकी मौत लेके आई है, लेकिन उसको इतना नहीं पता था मौत उसकी नहीं, मौत मेरी आई है। खड़ी हो गई, आके अल्लाह की तस्बीह कहनी शुरू कर दी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहान ज़िल मुल्की वल मलक सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबा वल कुदरा वल किबरियाई वल जबरूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। वो तीर पहले चढ़ा हुआ था, उसने फिर उठाया, फाख्ता का निशाना लिया और पीछे से उसकी तंद खींची और पूरे जोर से ना उसने तीर फाख्ता के निशाने पे छोड़ दिया। अब हजरत अगर आप गन से भी फायर करें ना तो कुछ देर तो फायर होने के बाद जो गोली है ना उसने नली में वक्त, नली से गुजरना है ना, वक्त तो उसने गुजारना है वो बड़े थोड़े से लम्हात है। इसी तरह अगर आप तीर भी छोड़ेंगे तो भी कुछ वक्त तो कमान में गुजारेगा ना, फिर ही निकलेगा ना। अब वही वक्त जो तीर ने छूटने के बाद कमान में गुजारना। हुआ क्या, क्योंकि इस तरह थी, हुक्म इलाही से आके ना सांप ने शिकारी के पांव पे डसा, डंक मारा। जब उसने डसा ना तो दर्द हुई और दर्द होने की वजह से वजूद में झटके की कैफियत बनी। जैसे हमें भी भीड़ काटे, चूटी काटे तो एक दफा हम भी हिलते हैं इस तरह। जहर है वो तो सांप था, इतना जहर उसने उसके जिस्म में उड़ेल दिया, दर्द भी हुई। तो वो क्या हुआ, वो जो हाथ ऐसे था ना फाख्ता के निशाने पे, वो झटका लगने से ना जब ऐसे हुआ ना तो हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर निकल और जाके ना बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। दोनों कड़ब जमीन पे गिरे और वो छोटी सी फाख्ता वो उधर ही बैठी है। मियां साहब सारा तमाशा देख रहे थे। फिर मियां साहब ने आखिरी शेर लिखा। तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं कुगी रही अथां खलोती। मिसाल के तौर पे अब अथां
हमारे पंजाबी में मसलन को बंदा है ना, आप लेने मिसाल के तौर पे वो ये हैदराबाद है, तो मुझे उसकी कॉल आ गई, तो मैं उसको पूछूंगा भाई किधर है, तो कहेगा जी मैं हैदराबाद हूं, तो हम पंजाबी उसको बोलेंगे उत्थे ही रही, मैं आन लगा, ठीक उत्थे ही रही। तो क्योंकि हर 35 किलोमीटर के बाद ना बोली थोड़ी सी बदलती है, हर 35 किलोमीटर के बाद बोली थोड़ी सी बदलती है। हमारे पंजाबी में सियालकोट गोजरावाला वाले जो हैं वो कहते हैं ओथे ही, लेकिन ये जो ओथे है ना, ये निकलता 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 गुजरात, लाला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर क्रॉस करके जब पहुंचा ना मीरपुर कैलो खड़ी, तो ये थोड़ा सा बदल के ना ओथे तू अथां बन गया। अब आप समझ गए हैं कि अथां का मतलब क्या है। फिर मियां साहब क्या आखिरी शेर में लिखते हैं, अब फरमाते हैं कुग्गी रही अथां खलोती, जिसको दो मारने आए थे वो उधर की उधर ही खड़ी है, इधर मौत को मौत आ गई है, इधर कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है, मर्जी रब मर्जी। असी बस बेतुका मत्था लाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ बेतुका मत्था लाया, मर्जी रब दी, ਅਸੀਂ बस पुत्र मत्था लाया बेतुका जिहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहोगे हजरत साहब ये तो आपने चंगाम पे इल्जाम लगा दिया मीरपुर आके कि जी हमने अल्लाह से मत्था लगाया हुआ, हमने किधर मत्था लगाया है? नहीं हजरत, जब हम अजान की आवाज सुन के नमाज पढ़ने के लिए नहीं नहाते हैं, इसी को मत्था कहते हैं। और मत्था किसको कहते हैं? वो क्या, वो उधर से क्या पैगाम आ रहा है, हय्या अला और मैं आगे से क्या कह रहा हूं, नहीं आना। तो मत्था किसको कहेंगे? ये मत्था ही तो है इधर, वो कह रहा आओ, नहीं आना, और मत्था किसको कहेंगे? मत्था नहीं है। फिर वो आगे फिर दूसरा पैगाम आया, वे बंदे हैं ना, नफे नुकसान के सौदे करते हैं, अब काम छोड़ेंगे, दुकान बंद करेंगे, मस्जिद जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा बड़ा। फिर दूसरी आवाज दी, क्या बंदे परेशान ना हो, तू साढ़े घर आना है, हय्या अलल फलाह, और बंदे तू साढ़े घर आना, तेन खाली नहीं भेजांगे, नहीं। और मत्था किसको बोले? मत्था ही याद रखना मियां, उसे कोई मत्था नहीं लगा सकता, बहुत जोरों वाला है, कोई मत्था नहीं लगा सकता, क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, जोरा मर सुतराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाणे, उच्चे टिब्बे शेरां मल्ले ते थर मल्ले मुर्गाइयां, चारां नुकरां मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। और मुझे सबसे खूबसूरत शेर लगता है मियां साहब, कमाल मियां साहब ने कर दी। अब फरमाते हो उज़्र बहाना चलना नहीं, जब आर्डर आ गया कोई नहीं। मैं हजरत अपनी वालदा साहबा की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, 17 साल, 23 साल मेरी उम्र थी, अम्मी फौत हो गई है। जे उधर बहाना चलता तो जरूर अगू अर्ज कर दी, रब्बा जिन्हों 17 साल मंगया, जिन्हों 23 साल पालिया, कुछ तो वेखण दे ओदा। उज़र बहाना चलता, भावें 17 साल मंगया, भावें 23 साल पालिया, ऑर्डर इज ऑर्डर, खत्म, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कोई ये आपके और मेरे बहाने हैं हजरत, जो हमने तराश रखी। जब ऑर्डर आ गया कौन सा बहाना, कुछ नहीं, खत्म, बस
उज़र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए, दीगर नूं जे टहना होवे कानू कुल कुल मरिए। या तो भाई इत्थे कोई है इस तरह का भाईया बैठा जिहड़ा कहंदा मैं नहीं टहना, तो उठ के खलोए असीं उहनूं भी पुछीए भाई तू क्यों नहीं टहना है कोई भाईया इत्थे बैठा दा जिहड़ा कहंदा मैं नहीं टहना है। मंदे हो सारे कि टहना है जी, क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਟਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਟਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਟਹਿਣਾ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਲਿल्लाह व ਇੰਨਾ ਇਲੈहि ਰਾਜਿਊਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ नहीं अपनी नमाज़ां पूरी करिए। पूछना जी, कोई ना समझियो कि नहीं पूछना, उन्हें पूछना जी, उन्हें पूछना। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जब किसी परिंदे को देखा करते तो आप आह भर के फरमाया करते, तू अबू बकर तू चंगा है, दरख्तां दे फल खाने, चश्मियां दे पानी पीने, तेन पूछया नहीं जाना, उन्हें पूछना जी। अल्लाह ये जन्नती है, जन्नती। ये मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, मैं ज्यादा नहीं। अच्छा चलो, इधर अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हो कि जिसको कभी कहीं से शादी कार्ड आया हो और बगैर किसी वजह के शादी पे ना गया हो, हुआ कभी इस तरह कि शादी का कार्ड आया हो और हम ना जाएं, लिखा है, हुआ कभी इस तरह? नहीं, जाते हैं हम, जाते हैं, हो ही नहीं सकता हम ना जाए कोई। तो याद रखना, ये जितनी शादियां हमने खाई हैं ना, ये जितनी शादियां हमने खाई, ये नोट है सारी। फिर क्या होना है, उस दिन हमारा खाता खुल जाना है। फिर एक एक शादी हमें दिखा के पूछा जाएगा, बंदिया वो तुझे बंदे ने बुलाया तो तू चला गया, तुझे सांगड़ बुलाया तू चला गया, तुझे शतादपुर बुलाया तू चला गया, तुझे जामशोरो बुलाया तू चला गया, तुझे मोरो बुलाया तू चला गया, तुझे घोटकी बुलाया तू चला गया। वो तेरे मोहल्ले में मेरा घर था, मैं तुझे रोज 5 बार बुलाता था, क्यों नहीं आया है? पूछा जाए। मैं कोई बड़ी मजबूरी बन जाए ना उधर पंजाब वगैरह में, तो मैं कुल 10वें पे टाइम देता हूँ, नहीं तो मैं माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि कुल 10वें पे जाके मेरा दिल कट जाता है। इतना बड़ा रश होता है कुल 10वें। थोड़ी देर पहले हजरत हमने नमाज जोर पढ़ी होती है एक सफ के साथ, हजरत सारे जनाब वो इकट्ठे हो जाते हैं मनहूस, जो बंदे के बुलाने से आ जाते हैं। कुल पे रश, 10वें पे रश, शादियों पे रश, जलसों में रश, जुलूसों में रश, पार्कों में रश, बाजारों में रश हजरत। लेकिन जब अल्लाह के घर से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बनते कोई नहीं। और हजरत जी ये याद रखना पुत्र, जितने बच्चे आप नौजवान स्पेशली बैठे हो, ये आपका वहम है कि वो आपको बुला नहीं सकता है। याद रखना, उसे बुलाना आता है, लेकिन क्या है, उसने मोहलत दे दी, उसने रस्सियां दराज कर दी। अच्छा बंदे चल, आएगा तो तेरा भला, नहीं आएगा तो तेरा नुकसान। वो आना तो मेरे ही पास है ना, फिर उस दिन तुझे पूछ लेंगे क्यों नहीं आया है। ये तो पुत्र हम सारे इतने जो गए, आज एक सिपाही आके सिर्फ थाने से हमें आके इतना कह जाए ना कि काका जी सवेरे 7 बजे तुझे SHO साहब ने बुलाया है, तो मैं देखता हूं हजरत जी हम किस तरह 7 बजे थाने नहीं पहुंचते हैं। तुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तू SHO के बुलाने से ना जाए है, तो तूने अल्लाह को इतनी कमजोर समझ लिया कि वह तुझे बुलाए और तू आए कोई ना है। आपने क्या अल्लाह को इतनी कमजोर समझ लिया कि वो बुलाए हम ना आए? लेकिन क्या नहीं, आएगा तेरा भला, नहीं आएगा तेरा नुकसान।
बाकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तू मेरे पास आना वापस, कहां जाएगा तू? किधर भागेगा तू? भाग सकता तू नहीं भाग सकता। क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयी अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा वला वहुवल खल्लाक़ुल अलीम व कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। क्या कर लेगा? किधर भागेगा? तू आएगा हमारे पास, हम तुझे दोबारा जिंदा करेंगे और फिर तुझे सारी बातें होंगी। बंदे सालगिरह, मंगनी, अकीका, शादी, वलीमा, बारात, मरी, नरान, कागान, सारी जगह तू गया। बस इतना बता, हमारे मोहल्ले में तेरा घर था, तुझे रोज 5 बार बुलाते थे, क्यों नहीं आया है? तेरे मोहल्ले में हमारा घर था, तेरे मोहल्ले में हमारा घर था, क्यों नहीं आया? दे जवाब आज। अच्छा चलो जी, मेरे पास उतर सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं और एक कोई दर्द आप बच्चों के पास लेके आए। चलें, जितने अहबाब बैठे हैं ना, ये सारे तसव्वुर कर लें कि मैदान माशर है, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और हमें सवाल हो गया है कि बंदे नमाज पढ़न क्यों नहीं आया। सोचे हैं क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं आया? जितने अहबाब बैठे हैं, भाई सवाल तो होना ही है ना। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे पहले पूछे ही नमाज के बारे में जाए। सोचे हैं हजरत जी, सवाल हो गया, बंदे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं पढ़ी? और मैं मुस्लिम शरीफ की आखिरी रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा हजरत जी। माशाअल्लाह सईदी साहब किबला बैठे हुए हैं और उलमा तशरीफ फरमाए, सारी हदीस पाक ने जी, बस उसका मफहूम थोड़ा मुकम्मल नहीं। फिर क्या होगा? जिसने नहीं पढ़ी है, जिसने अल्लाह को नहीं याद किया, नहीं बात मानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल, फिर क्या होगा? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने बंदे को जो जो नेमतें दी होंगी ना, अल्लाह एक एक बंदे को याद करवाएंगे। बंदिया, तुझे जिंदगी दी, देखो ना, कोई माँ के पेट से मुर्दा है, उसका कसूर तो नहीं था मुर्दा है, बस अल्लाह की हिकमत थी। कुछ 4 सांसें लेके चला गया, कुछ 4 माह बाद चला गया, कुछ 4 साल बाद चला गया, कुछ 14 साल बाद चला गया। अब मेरी उम्र हजरत इस वक्त 38 साल है, तो मुझे सवाल तो होगा ना, मौलवी सुलेमान तेन 38 से लैके गए सी, अल्लाह मजबूर तो नहीं था मुझे 38 पे लेके जाने, अपने फजलो करम से ले गए। तो सवाल होगा, तुझे गाड़ी दी, ठीक, तुझे इज्जत दी, बीवी दी, बच्चे दिए, ठीक, नाम दिया, ठीक, गिज़ा दी, ठीक है, लग्जरी लाइफ दी, ठीक है, जो जो नेमतें दी होंगी ना, अल्लाह एक एक बंदे को याद करवाएंगे और बंदा आगे से इकरार करेगा हाँ अल्लाह दी। और हदीस पाक का मफहूम है, फिर एंड पे अल्लाह फरमाएंगे बंदे तू फिर भी हमें भूल गया, तुझे मेंढक नहीं बनाया, अगर तुझे मेंढक बना देते तो क्या बिगाड़ देता हमारा? तुझे कब्बा नहीं बनाया, तुझे 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 गधा नहीं बनाया, तुझे घोड़ा नहीं बनाया, तुझे तोता नहीं बनाया, तुझे मेंढक नहीं बनाया, तुझे इंसान बनाया, तू फिर भी ना शुक्रा रहा, तू फिर भी गाफिल रहा, तूने फिर भी मुझे भुला दिया। तो हदीस पाक का मफहूम मिलता है, बंदा आगे से अर्ज करेगा हाँ रब्बे करीम मैं तुझे भूल गया, मैंने तुझे भुला दिया। तो फिर हदीस पाक का मफहूम मिलता, फिर अल्लाह आगे से फरमाएंगे अच्छा बंदे दुनिया में तूने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुझे भुला दिया है। और लिखा है कि अल्लाह का बंदे को भुला देना, अल्लाह का बंदे को भुला देना जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा, जिसको अल्लाह कह देंगे जा मैंने तुझे भुला दिया। इसलिए पुत्र, जितने नौजवान स्पेशल बैठे हो मेरे बच्चे का क्यों पुत्र अपनी नमाजा पूरी कर, यही हमारे बुजुर्गों का, यही सूफिया का पैगाम है, यही उनका तरीका है। वो तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल इशा के वुजू से नमाज फजर अदा फरमाई, हमसे पुत्र 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती। अब देखो ना तकरीबन
ये 24 घंटे बनते हैं। अब फजर की नमाज को बड़ा खुला टाइम दें तो मैं कहता हूं जी 15 मिनट दे दिए, अल्लाह 15 नहीं बनते कोई, वो बड़ी तवील की रात करे हजरत जी, सूरह मुज़म्मिल पढ़े, मैं अक्सर फजर में पढ़ता हूं, तो तकरीबन 13 मिनट लगते हैं, 13 मैंने 15 दे दिए फजर को, 20 दे दिए नमाज जुहर को, 20 और 15 बन गए 35 बन गए, 10 मिनट दे दिए जी असर को, 35 और 10 45 बन गए, ले जी 20 ही हमने दे दिए जो है ना मगरिब को, 55 बन गए हजरत, लो जी 25 हमने दे दिए जो है ना इशा की नमाज को दे दिया, अल्लाह मैंने बड़ा खुला डुला वक्त दिया, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और 20 मिनट बन गए। मैं कहता हूं कि वो बंदा कोई बंदा है कि जिसके पास 24 घंटों में से अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 20 मिनट भी नहीं है। अल्लाह मैंने बेटा बड़ा खुला डुला वक्त दिया, इतना वक्त नहीं बनता है कोई, वो बंदा कोई बंदा है कि जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट नहीं है। अपने बड़े गिले करते फिरते हो, और जी वो देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई कभी अपने आप पे भी तो गौर कर, तू कैसा है? जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, चांद अल्लाह का, तारे अल्लाह के, सब्जियां अल्लाह की, फल अल्लाह के, गोश्त अल्लाह का, पानी अल्लाह का, हवा अल्लाह की, सारा कुछ तू खा रहा है। कभी उसने सूरज का तुझसे बिल लिया? कभी उसने ऑक्सीजन के तुझसे पैसे मांगे? कभी उसने सब कुछ तू उसका यूज कर रहा है, तो फिर भी तेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। लोगों की बड़ी तुझे नजर आती है, अपने आप को भी तो देख। इसलिए पुत्र जितने अहबाब बैठे हो, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा बेटा अपनी नमाजें पूरी करो, इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे ना सारे नमाज में, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। फिर इसी पिच हो गया, फिर तशबीह मुसल्ला की करना, असां ज़ाहिर नूं रब मन्याए, बातन दा अल्लाह की करना, असां ज़ाहिर नूं रब मन्याए, बातन दा अल्लाह की करना।